Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, Good morning, ma'am. ma'am. Good afternoon. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. It is okay. One and the same thing. Good morning, ma'am. Ma'am, only for 8 minutes. Good morning, ma'am. Good morning, Vita. Ma'am, history, geography, civics. We have civics today purely, Okay, ma'am. and no combined classes. Ma'am, we study so hard that time passes, we don't realize. Exactly same with me also. Yes, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning, Vita. Because we have back-to-back classes, no, though we hardly get Yes, time to, ma'am. hardly get time to think anything. So we go with the flow, right? Yes, ma'am, absolutely. Fine. Okay, yesterday I explained you till the coming together and the holding together federations, right? Yes, ma'am. Tell me anything in that which is not clear and understood to you people. Ma'am, coming together and holding together federation. Okay. Coming together and holding together is not clear to you, Gargi? Ma'am, actually last day your voice was breaking too much, so I can't hear you. Okay. Still, what have you realized? What have you understood? Can anybody tell? Can anybody tell me? Ma'am, in federalism. India Holding is a together. kind of Wait. federal Yes, which is yes, Pavni. Wait. holding. Now you start. Ma'am, India is a kind of federal government which is holding together Okay. all the states and all. Huh. We have segregated the division. We have divided the powers among the state and the central government. So it is a holding Authority, yes, ma'am. federation. Yes, it is a holding together federation. What else? Ma'am, Ma'am, like the central government is more powerful. In this, the central government is more powerful. Yes, what else? Ma'am, can you explain that here it is written constituent units of federation. So what does it mean? भाई जो भी उस जब होल्डिंग एक मिनट रुक जाओ आप बुक में से पढ़ रहे हो ना Yes, ma'am. coming wait give me a moment it says when it is coming together federation वहां पे Yes. सेंट्रल गवर्नमेंट है Yes, ma'am. ठीक है वो ये कह रहा है कि जितने लोगों ने भी मिलके एक बड़ा यूनिट बनाया है बिगर यूनिट बनाया है उन सबकी अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स हैं ठीक है Okay, ma'am. ठीक इतना क्लियर हुआ Yes, ma'am. चलो एनीबडी एल्स हु कैन एक्सप्लेन बेटर अनन्या Yes. बताओ अच्छा चलो गार्गी Ma'am, in Yes, like ma'am. the central government, they can give orders to the local government or the state government, but they cannot give to the central government. नहीं ऐसा नहीं चलो हम बताते हैं चलो गार्गी आई एम टेलिंग अगेन ओके Okay, ma'am. coming I will tell about coming together federation first and then holding together right this way it will be easy to understand right Okay, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ma'am. fine see when we say coming together federation we are basically talking जहां पे जो कंट्रीज हैं वो एक साथ आके एक बड़ा यूनिट बनाते हैं ठीक है जैसे अमेरिका जो है वो एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन है जिसमें कि यूनियन नहीं है जैसे हमारी जो कंट्री है इट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स हमारी कंट्री को हम क्या बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स बोलते हैं पर अमेरिका को यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं बोला जाता है ठीक है क्यों क्योंकि वहां पे यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है उसका रीजन ये है कि वहां पे जितने भी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैं
उन सबके पास अपनी इंडिपेंडेंट पावर्स हैं। वो अमेरिका के साथ आके उन्होंने एक लार्जर यूनिट बनाई है, ठीक है। बट जो ये विवान इज ऑफ विच, ये क्या है, ए सेक्शन इज ऑल्सो मर्ज्ड विद माय क्लास। Good morning, ma'am. ओके, चलिए। हाँ, हम आपको ये बता रहे थे कि जो अमेरिका है, अमेरिका यूनियन ऑफ स्टेट्स नहीं है। हमारा कंट्री जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हमारे कंट्री में क्या है कि जितने भी स्टेट्स हैं वो हमारे कंट्री को एक, हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा लवलेश। लवलेश, ये हमारी कंट्री, ये जो अमेरिका में जो स्टेट्स हैं जितने भी हैं, बेटा एक मिनट रुको, ये सब बच्चे आ रहे हैं, लेट देम गेट इन। Okay, ma'am. जस्ट अ सेकंड। चलिए, I think almost all have joined. Fine. I was telling you about the coming together federation. When we say coming together federation, we are talking that when independent states come together to form a bigger unit. कह रहा है इंडिपेंडेंट स्टेट जब एक साथ, जब इंडिपेंडेंट कंट्रीज जो हैं वो एक साथ मिलके एक कंट्री के साथ मिलके जब वो बड़ी यूनिट बनाते हैं तो वो आपका कमिंग टुगेदर फेडरेशन हो जाता है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, इतना क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कह रहा है Yes, ma'am. उसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं जो उसको बनाते हैं, कंप्राइज करते हैं, उन सबके पास इक्वल पावर्स होती हैं। ठीक है, Okay, ma'am. Okay, ma'am. और जो स्टेट्स और जो कंट्रीज हैं जो उसका पार्ट है वो अपने आप में स्ट्रांग होती हैं। देन दी सेंट्रल गवर्नमेंट भी का भी रोल होता है, बट कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स में बहुत ज्यादा रोल उसका नहीं होता है।
जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं, जैसे जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो कंट्रीज होती हैं, उनका अपना जुडिशरी होता है, उनके अपने लॉज होते हैं। अगर आप अमेरिका का एग्जांपल लो तो अमेरिका में जितने भी कंट्रीज जो अमेरिका को कंप्राइज को बनाते हैं, बड़ा यूएसए जो बनाते हैं, उनमें हर कंट्री के अपने, कैलिफोर्निया को ले लो, टोरंटो को ले लो, उन सबके अपने अपने लॉज हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उनका अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, उनका जुडिशरी अलग है, सब कुछ अलग है। ठीक है, ये क्लियर हुआ बेटा गार्गी? Yes, ma'am. ये इट इज ऑल अबाउट दी कमिंग टुगेदर फेडरेशन, जहां पे छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स मिलके एक बड़ी यूनिट बनाते हैं, और वो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं जो कि अपने आप में पावरफुल होती हैं, जो कि अपने आप में काफी स्ट्रांग होती हैं, उनका अपना खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, उनकी अपनी खुद की गवर्नेंस होती है, वो कहीं से कहीं भी किसी से बाउंड नहीं होते हैं, राइट? Okay, ma'am. Yes, Then, Yes, ma'am. ma'am, then these countries can, ma'am, like these countries have their own rights. So, ma'am, when they want, they can also separate from their Yes, mother बिल्कुल country. बिल्कुल 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 सही बोला बेटा। Whenever they feel like they may disintegrate from them also, पर ऐसा कभी हुआ नहीं है कि कोई अलग हो गया हो। ठीक है? Yes, Ma'am, ये ma'am. country Ma'am, what is the single difference? unit form क्यों करते हैं? गार्गी, यू आर नॉट ऑडिबल, बोलो जोर से, क्या कह रहे हो? मैम, ये कंट्रीज एक सिंगल यूनिट फॉर्म क्यों करती हैं, मतलब इसका क्या एडवांटेज है? वो ये होता है ना कि बेटा देखो, छोटे छोटे कंट्रीज को तो कोई भी आके जो है वो उस पे जो है पावर शो करके उसको अपने अंदर ले लेगा, टेरिटरीज को। तो भाई वो क्या करते हैं, वो एक बड़ा यूनिट कंप्राइज कर लेते हैं, जिससे कि दूसरे कंट्रीज का कोई कंट्रोल ना रहे उन पे। ओके। ठीक है, चलिए। और जैसे यूएसए है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रेलिया जो है, ये हमारे जो है कमिंग टुगेदर फेडरेशन का पार्ट है। ठीक है, ठीक है, इतना समझ में आया गार्गी बेटा? यस मैम। yes, ma'am. ठीक है, अब आप आ जाओ Yes, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, जैसे हम, Ma'am, हाँ बेटा, ma'am, what is the difference between nation and a state? अरे बेटा यहाँ पे नेशन का, स्टेट का मतलब नेशन ही है, ये लिख देते हैं यहाँ पे। इंडिपेंडेंट स्टेट्स मतलब इंडिपेंडेंट कंट्रीज दे आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, Okay, ma'am. ठीक है, चलिए अब हम आते Yes, हैं, ma'am. हाँ अब हम आते हैं आपका होल्डिंग टुगेदर Yes. फेडरेशन से। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है, ये होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में एक बड़ी कंट्री जो होती है वो अपने आप अपनी पावर को डिवाइड कर देती है। क्या कर देती है, अपनी पावर्स को डिवाइड कर देती है इनटू दी, हाँ, इनटू दी कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स। ठीक है, क्योंकि एक बड़ी कंट्री को गवर्न करना Yes, ma'am. एक सेंट्रल अथॉरिटी के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है बेटा, है ना? तो वो क्या करते हैं, अपने पावर्स को डिवाइड कर देते हैं अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट्स, जो उनके जो स्टेट्स जिनको से वो पूरा बना है एक कंट्री, उनमें अपनी पावर्स को डिवाइड कर देते हैं। और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग तरीके से काम करते हैं। ठीक है, ठीक है, यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होते हैं उनमें पावर्स जो हैं अनइक्वल पावर्स एक्सरसाइज होती हैं। जैसे आप, अगर हम ये कहें कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स बराबर है, तो ये नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल क्योंकि वो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल कर रही है, सेंटर में बैठ के पूरे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को चेक करती है वो। भले ही स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही हो अपने लेवल पे, पर एक सर्वेलेंस, एक चेक तो रखा जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट कि भाई स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के काम में इंटरफेयर कभी नहीं करती है, पर अगर कोई नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो हमेशा जो है इंटरफेयर कर सकती है उसमें। ठीक है बेटा, यस मैम। Yes, ma'am. जब होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन की हम बात करते हैं, उसमें जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, इट इज मोर पावरफुल देन दी स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, ओके मैम। Okay, ma'am. हमने आपको एक चीज ये भी बताई थी कि जब तक आर्टिकल 370 एबॉलिश नहीं हुआ था, तब तक जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, और उस स्पेशल स्टेटस के चलते जम्मू कश्मीर में सब कुछ बहुत अलग था। जम्मू कश्मीर वाज अ डिफरेंट स्टेट
जहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन अलग था, जहाँ के जो वर्किंग थी वो कंप्लीटली डिफरेंट थी। पर जब से हमने 370 को वो करा है, एबॉलिश करा है, उसके बाद से हर्ष अभी बताते हैं, उसके बाद से जो है क्या बोलते हैं, उसके बाद से जो जम्मू कश्मीर, एक तो वो स्टेट नहीं बचा, दूसरा उसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, एक लद्दाख हो गई है और एक आपका जम्मू कश्मीर हो गया है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ गार्गी? यस मैम। बस इसमें डिफरेंस होल्ड कमिंग टुगेदर में, मतलब जब छोटे छोटे यूनिट्स एक साथ आके बड़ा यूनिट बनाते हैं, और होल्डिंग टुगेदर में एक बड़ी यूनिट अपने पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड करती है, सो दैट कि देयर इज अ बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। अच्छा, हर्ष के क्वेश्चन पे आते हैं। हर्ष ने पूछा कि मैम सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के काम में क्यों इंटरफेयर नहीं करती है? बेटा हर्ष, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पावर्स को डिस्क्राइब किया हुआ है। सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या पावर्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है, और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके अपने सब्जेक्ट से उनकी अपनी पावर्स है, उनका अपना लेजिस्लेशन चलता है। ठीक है, तो कभी भी इन दोनों के बीच में कोई क्लैशेस नहीं होते हैं, क्योंकि इनके पावर्स डिस्क्राइब्ड है। जैसे अगर आप क्लास में कोई पर्टिकुलर, आपको एक इंचार्ज बनाया जाता है किसी चीज का, आपके क्लास में सपोज 50 स्टूडेंट्स आर देयर एंड ऑल 50 हैव देयर इंडिपेंडेंट, यू नो, दे आर इन चार्जेस ऑफ इंडिपेंडेंट सेक्शंस, इंडिपेंडेंट चार्जेस, इन चार्जेस ऑफ अ सेपरेट, यू नो, whatever headings you people can divide them। तो जरूरी नहीं है कि अगर हर्ष इंचार्ज है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वीरेश अगर किसी और चीज का इंचार्ज है, तो दोनों आपस में एक दूसरे को उसकी ड्यूटीज बताएंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर हर्ष अपना काम सही से नहीं कर रहा है, then the teacher is there to tell Harsh ki, see, I have given you this in chargeship only because considering that you will be fulfilling the duty, you will be doing it in a dutiful manner, right? अगर आप नहीं करेंगे तो हो सकता है कुछ एक्शन लिया जाए। तो ऐसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के अपने पावर्स हैं, उनकी अपनी अथॉरिटीज हैं। अगर ये ठीक से काम नहीं करते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट का की जो वर्किंग है उसको हाई कोर्ट देखता है, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की वर्किंग है उसको सुप्रीम कोर्ट देखता है। तो अपने अपने स्टेट में दोनों एपेक्स कोर्ट्स हैं ये, और ये गवर्नमेंट को ही बताने के लिए है, ये बताने के लिए है कि भाई आपकी क्या पावर्स हैं, आपको किस तरीके से उनको एक्सरसाइज करना है। ठीक है, दिस मच इज क्लियर। हमसे कोई बच्चा ये पूछ रहा है कि ये बताइए मैम कि बांग्लादेश इंडिया से अलग क्यों हो गया? कैन एनीबडी टेल इन द क्लास व्हाई बांग्लादेश वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया? Yes, ma'am, because ma'am, वीरेश, अजीत बताओ बेटा। मैम क्योंकि पाकिस्तान, मतलब मैं पहले बांग्लादेश पाकिस्तान का ही पार्ट था मैम। नहीं, बच्चे ने पूछा है कि इंडिया बांग्लादेश से अलग क्यों हुआ, इंडिया बांग्लादेश से अलग क्यों हुआ? ma'am, मैं बताऊं? क्या से? वीरेश बताओ बेटा। Ma'am, because in the starting the British gave a rule that the princely state can choose either to be with India and or to be with out of India. The Bangladesh country chose to be out of India. No, you are wrong। गार्गी बताओ। Ma'am, because when there was the partition of Bengal, so British said that the Muslim part of the area would remain in Bangladesh while the Hindu part will be in West Bengal. So like they divided the West Bengal in 2 parts. हाँ जी, देखो बेटा, anybody else for the same answer? Ma'am, the British, like the British India province, they said that Bangladesh should be an independent country. Divide and rule. देखो बेटा, ऐसा था कि जब हमारी कंट्री में, anybody else for the same answer? मैम हाँ बेटा बताओ। Ma'am, because that Pakistan asked the state from India, then Indira Gandhi didn't allow ma'am, because that's why she made different country from Pakistan, Bangladesh. अजीत, आप वो केस बता रहे हो जब पाकिस्तान इंडिया से अलग हो गया था। आप जानते हैं बांग्लादेश और पाकिस्तान जब इंडिया का हिस्सा थे उस टाइम पे ये पार्टीशन हुआ था। डू यू नो दिस? 1905 में, क्लास 8 में हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा ये, मुझे नहीं पता कितना याद है, आपको कितना याद नहीं है। 1905 में जब बहुत ज्यादा इंडिया में जब बहुत सारे लीडर्स ने अपने आप को भाई नॉन, ये आपका जब ऑर्गेनाइज कर रहे थे इनटू, यू नो, ग्रुप्स एंड एसोसिएशन,
ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये कहने के लिए कि भाई आप यहाँ से चले जाओ छोड़ के इंडिया को, हमें सेल्फ गवर्नेंस करने दो, हमें अपने आप को खुद से रूल करने दो। तो उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या करा, उन्होंने ये देखा कि भाई हिंदूज और जो मुस्लिम्स हैं वो बड़े स्ट्रांगली यूनाइटेड हैं। तो उन्होंने क्या करा, जो बांग्लादेश जो था उस टाइम पे, बांग्लादेश ऐसा कोई अलग तो नहीं था ना, पाकिस्तान अलग था। तो उन्होंने क्या करा, बांग्लादेश के वेस्ट पार्ट को अलग कर दिया और जितने भी बांग्लादेशी मुस्लिम्स थे उनको भेज दिया, बांग्लादेश में छोड़ दिया, और जितने भी आपके हिंदू बांग्लादेशी थे जो बांग्ला बोलते थे और इस्लाम को फॉलो नहीं करते थे, उन लोगों को कहा कि आप जो है इधर आ जाओ, वेस्ट बंगाल का पार्ट हो जाओ। तो 1905 में पार्टीशन हुआ जिसमें कि वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल दो पार्ट्स हो गए। ठीक है, जब वेस्ट बंगाल बना तो ईस्ट बंगाल को जो है बांग्लादेश बुलाया जाने लगा। ठीक, जब इंडिया का पार्टीशन हुआ पाकिस्तान से तो जो ईस्ट बांग्लादेश था वो पाकिस्तान के साइड में चला गया। ठीक है Yes, ma'am. ओके मैम। बेटा, क्लियर हो गया? यस मैम। क्लियर हो गया ना? तो उसके बाद अजीत जो बता रहे हैं ये तब की बात है जब पाकिस्तान का बांग्लादेश पार्ट हो गया। तो और बांग्लादेश में जो थे सारे के सारे जो बांग्लादेश जो बांग्ला बोलते थे वो लोग बांग्ला बोलते थे और उनका रिलीजन इस्लाम था, वो इस्लाम को फॉलो करते थे, वो मुस्लिम्स थे, बट वो लैंग्वेज जो बोलते थे वो उर्दू नहीं बोलते थे, वो बांग्ला बोलते थे। तो वहां पे क्या हुआ कि जब इलेक्शंस हुए तो ये हुआ कि इलेक्शंस, भाई डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए, तो बांग्लादेश का जो एक लीडर था, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहा बच्चे उसका, तो वो उसने विन करा इलेक्शंस में, बट क्योंकि वो उनसे ये कहा गया कि जितने भी बांग्लादेशी हैं वो लोग इस्लाम को तो फॉलो कर ही रहे हैं पर उनकी जो लैंग्वेज है वो बांग्ला ना होके उर्दू होगी। उन्होंने जबरदस्ती करी उनके साथ कि वो उर्दू बोले बजाय बांग्ला बंगाली के। तो इस वजह से जो वहां के जो लीडर्स थे बहुत ज्यादा मतलब दिक्कतें हुई, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई, काफी जो है लड़ाई झगड़े भी हुए, इंटरनली काफी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। पर पाकिस्तान थोड़ा सा डिक्टेटर हो गया इस मामले में और उन्होंने जो है जो डेमोक्रेटिकली जो गवर्नमेंट पावर में आई, जो मेजोरिटी में पार्टी जीती, उसके लीडर को प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया। तो जब ऐसा हुआ तब जो है इंडिया से उस टाइम पे हमारी प्रधानमंत्री जो थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी, तो उस टाइम पे बांग्लादेश ने हमारी प्राइम मिनिस्टर जो थी उनसे हेल्प मांगी और कहा कि इंडिया ही हमें सपोर्ट कर सकता है, इंडिया ही हमें इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है। तब इंडिया ने पार्टिसिपेट करा था इन द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। अजीत, अब ये क्लियर है बेटा? यस मैम। हाँ, यू तो वर ऑलरेडी अवेयर ऑफ दिस। चलिए ठीक है, दिस वाज समथिंग अदर देन द चैप्टर वी हैड। ओके, होल्डिंग टुगेदर एंड कमिंग टुगेदर क्लियर है सबको? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. Yes. मैम यस बेटा। मैम एज यू सेड मैम, सेंट्रल गवर्नमेंट जोर से बोलो, मुझे ऐसे समझ have नहीं decreased the आता है। power of Delhi. क्या कह रहे हो? Ma'am, but why LG has decreased the Ma'am, but why LG has decreased the Delhi government's power? क्या मुझे, अच्छा हिंदी में पूछो, सही से हिंदी में पूछो, क्या पूछना चाह रहे हो आप? मैम 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 वही कहना चाह रहे हैं कि वो दिल्ली में एलजी पे पावर ज्यादा क्यों आ गई मैम? अरे बेटा, ये कौन है एलजी, कौन है दिल्ली में, ये बताओ आयुष। अभी हाँ, एलजी का क्या रोल है? Ma'am, without LG's approval, Delhi government can't pass any law. हाँ, इट कैन नॉट पास एनी लॉ। ऐसा क्यों है पर ये बताओ? Ma'am, that's what I am asking. That is what you are. Anybody in the class who can tell me this? Ma'am, what is the question? क्वेश्चन इज कि दिल्ली में जो एलजी है, गवर्नर है, उसकी पावर ज्यादा क्यों है? मैम बिकॉज इन दिल्ली मैम इन कॉन्स्टिट्यूशन रिटन दैट मैम क्या लिखा है बताओ? मैम दैट लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज Ma'am, because it is a union territory. चीफ मिनिस्टर मैम सॉरी
दोबारा 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 क्या बोला चीफ मिनिस्टर? क्या मैम ही हैज मोर राइट देन चीफ मिनिस्टर मैम। पर ये है क्या कॉन्सेप्ट? एलजी का कॉन्सेप्ट है क्या दिल्ली में? ये हमें समझ नहीं आया, आप हमें समझाओ। एनीबडी मैम यू ये कैन अगर केजरीवाल जी मतलब कुछ लाना चाहते हैं मतलब दिल्ली में, तो उससे पहले उन्हें एलजी की सलाह लेनी पड़ेगी मैम। हाँ वो तो ठीक है। लेफ्टिनेंट हाँ ठीक है, ऐसा क्यों है पर ये तो बताओ। मैम इतना नहीं पता। अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपको बहुत नॉलेज है बेटा, ये बहुत अच्छी बात है। यू शुड ऑलवेज बी अवेयर ऑफ योर व्हाट इज गोइंग ऑन। एनीबडी इन द क्लास? ध्रुव, सृष्टि, जिज्ञासा, शिवांशी, हर्षित, आयजा, कनिका, पावनी, गार्गी? Ma'am, no Ma'am, idea because what it is this a union concept. territory. बिकॉज इट इज अ यूनियन टेरिटरी। वेरी गुड ध्रुव, वेरी गुड बेटा। क्योंकि दिल्ली जो है वैसे तो एक यूनियन टेरिटरी है, पर क्योंकि वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हो गई थी इसलिए उसको स्टेट का दर्जा दे दिया गया है। ये तो सबको पता ही है ना। यस मैम। Yes, पर ma'am. एक्चुअल में है तो वो यूनियन Yes, टेरिटरी। ma'am. इसलिए अगर मुख्यमंत्री कोई चेंजेस लाना चाहता है तो उसको पहले एलजी से उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही वो बदलाव ला सकता है। क्लियर? Ma'am, because union territory is always ruled by president and governor only. प्रेसिडेंट Ma'am. एंड गवर्नर ओनली। यस बेटा। हाँ जी, बेटा मेन रीजन क्या चीज बेटा? मैम ऐसा है क्योंकि मैम जो मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट है ना मैम, उसका मतलब मेन पावर दिल्ली में रहा, इसलिए मैम गवर्नर के पास ज्यादा पावर है। वरना मैम चीफ मिनिस्टर हो जाएगा तो मतलब मैम स्टेट में और यूनियन में कोई फर्क नहीं रहेगा मैम, इसलिए। एग्जैक्टली बेटा, बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। वेरी गुड, गुड। चलिए बहुत अच्छी बात है। चलो अब हम आ जाएं टॉपिक पे। एनीबडी एल्स फॉर एनी अदर क्वेरी? No, ma'am. चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जिसमें कि हम सब ये जानते हैं कि व्हेन वी से दैट इंडिया इज अ फेडरल कंट्री, व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री? तो ये जो फेडरल वाला जो फीचर है, इफ यू रिमेंबर, हमने आपको बताया था क्लास 9th में कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ ना कुछ प्रोविजन जो है वो हमने लिया है और उसे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इनकलकेट करा है। ठीक है, वो इसलिए ताकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का बेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हो, जहां पे बार बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की जरूरत ना पड़े। तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने बहुत ही समय लेके बहुत ही आराम से इस कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करा। तो हम ये कहते हैं कि इंडिया इज व्हाट मेक्स इंडिया फेडरल कंट्री। इंडिया को फेडरल कंट्री कैसे बनाया गया? तो फेडरल कंट्री ऐसे बनाया गया कि हम लोगों ने एक 3 फोल्ड लिस्ट सिस्टम को फॉलो करा, जिसमें हमने सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार है, लेजिस्लेशन का अधिकार है, बट देयर आर ओनली स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स ऑन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लॉज। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को भी यही सिमिलर पावर्स दिए गए, कुछ सब्जेक्ट्स दिए गए जो कि जिसपे कि केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट ही लॉज बना सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करती है। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे थे बेटा जो कि दोनों ही स्टेट और सेंट्रल के लिए इंपॉर्टेंट थे, तो उन सब्जेक्ट्स को हमने कॉन्करेंट लिस्ट में डाल दिया। एक कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब होता है एक मिलीजुली लिस्ट जिसमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लोग अपने तरीके से कानून बना सकते हैं। पर यदि अगर इफ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है वो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ से अगर कॉन्फ्लिक्ट करता है, तो क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी हायर अथॉरिटी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ को हम प्रिवेल रखेंगे और स्टेट गवर्नमेंट के लॉ को हम कैंसिल कर देंगे। आई होप इतना क्लियर है आप लोगों को। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. ठीक है, तो हमारा कंट्री फेडरल कंट्री ऐसे है कि हमने अपने कंट्री में जो हमारे जो फेडरल यूनिट्स हैं उनकी पावर्स को डिवाइड कर दिया है। सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट को कंप्लीटली डिफरेंट पावर्स दे दिए गए हैं। ठीक है, Yes, Yes, ma'am. ma'am. जैसे पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये स्टेट गवर्नमेंट का पार्ट है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट क्या है? डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, करेंसी, ये सारे के सारे हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिस्ट के
पार्ट है। अब अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं तो कॉन्करेंट लिस्ट में हमारा एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन आ जाता है सब्जेक्ट, हमारा फॉरेस्ट आ जाता है, हमारा ट्रेड आ जाता है, हमारे मैरिज आ जाती है, हमारा एडॉप्शन पार्ट आ जाता है और हमारा सक्सेशन पार्ट आ जाता है। भाई आप देखो, पहले जो है लड़कियों को बिल्कुल अधिकार नहीं था अपने पिता की संपत्ति में से कुछ भी मिलने के लिए। जो भी फादर के एसेट होते थे दे वर डिवाइडेड इक्वली अमंग द ब्रदर्स और दी सन्स। डॉटर्स और सिस्टर्स वर नेवर कंसिडर्ड फॉर दैट। बट आज की डेट में अगर आप देखो, एज पर हिंदू कोड बिल, हमारे कंट्री में जो लेडीज हैं या जो डॉटर्स हैं उनको अपने फादर की प्रॉपर्टी में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन का शेयर जो है वो मिलना मैंडेटरी कर दिया गया है। ठीक Yes, है, ma'am. ठीक है। तो ये सब्जेक्ट्स है जिनको डिफाइन करा गया है अंडर द यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। हमारे कंट्री में हम फेडरल फॉर्म को, फेडरल फीचर जो है हमारा और या फेडरल स्ट्रक्चर जो है उसको हम इसीलिए बहुत स्मूथली फॉलो कर पाते हैं बेटा, क्योंकि हमारे पावर्स डिफाइंड है। अगर ये पावर्स डिफाइंड नहीं होते स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के, तो प्रॉब्लम पता है कहाँ आती? हम एक दूसरे के काम में इंटरफेयर करते। आपने कभी देखा होगा घर में अगर कोई कुछ काम कर रहा होता है, एक सिंपल सा एग्जाम्पल, सपोज फॉर एग्जाम्पल मम्मा सब्जी काट रही है और पापा बगल में बैठे हैं, तो पापा एक दो बार कुछ ना कुछ कह ही देंगे कि अरे ये ऐसे करो, ये ऐसे करो। तो अब सब्जी काटने जैसी चीज इज अ वेरी स्मॉल थिंग, उसमें भी अमूमन लेडीज दे डोंट प्रेफर कि कोई इंटरफेयर करे, उनको ये बोले अच्छा तुम सही से नहीं काट रही हो। तो Yes, जो ma'am. ठीक है, तो आई हैव सीन लेडीज की वो ये कहती है कि ठीक है तो आप ही काट लो अपने तरीके से। Yes, ma'am. ना, ये बहुत कॉमन सी चीज है, बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है ये। तो ठीक ऐसे ही पावर्स में भी होता है, बट उसमें ये होता है कि अगर आप इंटरफेयर करते हो तो लीगली यू आर नॉट ऑथराइज्ड टू डू सो। तो ऑन लीगल ग्राउंड्स जो है उस पर फिर गलत चीज हो जाती है ये। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं कि भाई जब हम लिस्ट सिस्टम की बात करते हैं, जब हम डिवीजन ऑफ पावर की बात करते हैं, इन दैट केस व्हेन द पावर्स आर डिफाइंड, व्हेन द divisions are done, then the state government has to confine itself to its territory and its governance. The state government cannot interfere in the central government's working, neither the central government can interfere in the working of the state government. But whenever there is an issue of security of the citizens, in that case of course the central government can always give directions to the state government. ठीक है, उसमें उस केस में जो है एक इंटरफेरेंस ये होता है कि भाई बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पूरे कंट्री से कंसर्न रखती है, पूरे कंट्री के एडमिनिस्ट्रेशन को वो देखती है, तो इसलिए जो है उसका कंसर्न एकदम जायज होता है। जैसे अभी एक एग्जांपल हम आपको बताते हैं, जैसे जो नक्सलाइट रीजन है, जो एरिया जो है वहां पे बहुत ज्यादा किलिंग्स हो रही थी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटरफेयर करना पड़ा। उसका रीजन ये था कि भाई आप देखो एक सोल्जर के, एक ऑफिसर के या एक सोल्जर के ट्रेनिंग में कितना समय लगता है, कितना पैसा जाता है, और हम उन सोल्जर्स को, उन ट्रेनीज को ऐसे ही मरने दें, तो दिस वाज नॉट जस्टिफाइड। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का थोड़ा सा कंसर्न था टुवर्ड्स द स्टेट गवर्नमेंट कि भाई व्हाट एग्जैक्टली यू आर डूइंग टू फाइट दिस। इस तरीके से हमारे मतलब हमारे जवानों को, हमारे ऑफिसर्स को अगर वो लोग इस तरीके से जो है हॉस्टेजेस में रखेंगे तो ये तो गलत चीज हो जाएगी। अभी रिसेंटली जो है एक नक्सलाइट रीजन था जहाँ पे एक सोल्जर को जो है कैप्चर कर लिया गया था। Yes. है ना, देयर इज अ मूवी ऑल्सो विच इज बेस्ड ऑन द नक्सलाइट्स ओनली। बहुत ही वैसी मूवी है वो, उसमें एग्जैक्टली बताया गया है कि किस तरीके की सिचुएशन से दीज पीपल गो थ्रू। हमें दूर से देख के लगता है कि अरे दे आर एंजॉयिंग लाइफ, बट ऐसा नहीं है। देयर लाइफ इज ऑलवेज एट स्टेक, क्योंकि उन्हें नहीं पता है कि कब कहाँ से क्या अटैक हो जाए। ठीक है, उड़ी मूवी देखी है आप लोगों ने? Yes, ma'am. उड़ी में जो ओपनिंग सीन है उसमें किस तरीके से दिखाते हैं कि Yes, एकदम ma'am. से माइंस होती है, लैंड माइंस होती है, और जैसी गाड़ी चलने शुरू होती है एकदम ब्लास्ट हो जाता है। तो ये जो चीजें हैं दीज आर क्वाइट कॉमन इन दोज एरियाज जो कि बहुत ज्यादा डिस्टर्ब Yes, रीजन। ma'am. ठीक है, ठीक है बेटा, चलो ये लिस्ट सिस्टम क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, चलिए अब हम हाँ यस बेटा, विदेश कुछ कह रहे हैं आप Like बच्चे? right now, Jammu Kashmir is there. विदेश आपकी आवाज क्रैक हो रही है बहुत ज्यादा। It is being attacked. हाँ हाँ From like Jammu. हाँ, जम्मू कश्मीर, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। जम्मू कश्मीर में भी बहुत ज्यादा ये है क्योंकि वहां पे से भी बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन है
फ्रॉम पीओके जो है आपका पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं। वहाँ के जितने भी सोल्जर्स हैं, दे एवरी डे बॉम्ब शेलिंग एंड एवरीथिंग दे हैव टू फेस। बहुत ही वहाँ की जो कंडीशंस है उनको हम यहाँ से बैठ के नहीं एनालाइज कर सकते हैं। बहुत मुश्किल है वहाँ की लाइफ, बहुत ज्यादा। यू आर ऑलवेज अंडर टेरर, इतना ज्यादा टेरर है कि मतलब आप पीसफुली आप सो भी नहीं सकते हो। आपको पता है कि एनी मोमेंट यू विल बी कॉल्ड और देयर विल बी अ बॉम्ब, बॉम्ब शेलिंग विल बी देयर कॉन्टिन्यूस। रात में जैसी रात होती है बॉम्ब शेलिंग शुरू हो जाती है, या फिर अचानक से जो है बुलेट फायर शुरू हो जाते हैं। ठीक है मैम। हाँ जी बेटा। मैम हाँ बोलो भाई अजीत। मतलब मैम ये नक्सली लोग हमला कर मैम देन व्हाई प्रेसिडेंट इज नॉट सेइंग एनीथिंग मैम? बेटा ये जो नक्सलाइट्स है ना, ये कंडीशन, ये जो वाला जो प्रॉब्लम है, स्टेट गवर्नमेंट्स आर लुकिंग इनटू दैट, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी उस पे काम कर रही है। बहुत सारे एरियाज को जो है बहुत सारे एरियाज में काफी स्थिति बेहतर हो गई है, काफी इंप्रूवमेंट आ गया है। बट अभी भी कुछ एरियाज में मैम बट है। हाँ बोलो बेटा। शिवांशी बेटा क्या कर रहे हो शिवांशी? मैम बट प्रेसिडेंट इज चीफ मैम इन ऑल फोर्सेस मैम। प्रेसिडेंट इज व्हाट? मैम इज कमांडर इन चीफ मैम। प्रेसिडेंट इज कमांडर इन चीफ, वो तो हमें पता है ये बात बेटा। प्रेसिडेंट ऐसा होता है ना, देखो प्रेसिडेंट ये आर्मी से रिलेटेड। धनंजय, later on these things are not to be discussed here in this platform. When you will come for your actual classes offline, then we will discuss. हम क्या कह रहे थे? अजीत का क्या क्वेश्चन था? कमांडर, अच्छा ठीक है। हाँ बेटा, प्रेसिडेंट का जो है, प्रेसिडेंट के जो इंटरफेरेंस रहते हैं ना, वो कमांडर तो हैं, वो चीफ ऑफ तीनों विंग्स के आपके चीफ हैं। बट उसमें क्या होता है ना कि जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज होते हैं वो तो गवर्नमेंट को ही देखनी होती है, वो प्रेसिडेंट से डिस्कस करते हैं। ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट हैज अ से इन दिस, वो डिस्कस करती है सेंट्रल गवर्नमेंट उनके साथ, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और या चीफ मिनिस्टर जो होते हैं, ये लोग आपस में डिस्कस करके अकॉर्डिंगली दे टेक एक्शंस। ठीक है? ओके मैम। ठीक है बेटा, चलिए। Ma'am, why president is commander of बेटा all the क्योंकि हमारे संविधान में ऐसा This लिखा is the last day. दिस इज द लास्ट क्लास, यस। ऐसा हमारे Ma'am, कॉन्स्टिट्यूशन he has not any qualification also. नहीं, ऐसा नहीं है भाई। भाई प्रेसिडेंट है वो कंट्री का, बीइंग प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, वो ऑथराइज्ड है इस चीज के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है कि भाई प्रेसिडेंट विल बी द चीफ ऑफ ऑल द 3 फोर्सेस। ठीक है? Yes, ma'am. हाँ चलिए और बताइए। ऑल द डाउट्स क्लियर? Yes, Beta, ma'am. Yes, ma'am. 10th C particularly, please read till where I have explained and let me know what you have not understood while reading also, okay? Monday, Okay, ma'am. whenever we have the next class, whenever we have the Yes, next ma'am. class, we will discuss, right? Okay, ma'am. Okay, ma'am. Chalo. Do take care of yourself. Do not go out of the houses unnecessarily. The cases are increasing, Yes, beta. ma'am. Very critical situation. Ma'am, our staff is also COVID positive. Up? No? No? Who said? Ma'am, my father. हमारे स्कूल में? Yes, ma'am.